Good afternoon to you all. Here I am Dr. Vijay Kumar, your geography teacher. Today I am going to start your new chapter. Name of the chapter is Mineral and Energy Resources, means खनिज और ऊर्जा संसाधन. As you know, minerals are widely used for industrial purpose, and beside energy used for smooth functioning of industries. Let us start. You have already studied about natural resources. Natural resources means those resources which are given by nature, known as natural resources. You well know, such as land, soil, water, vegetation, and wildlife. These all are given by the nature. Now, let us study about some other important natural resources which are also given by nature but different to natural resources. These are the mineral and energy resources. As you know, mineral used in industries. For example, iron ore, one of the mineral, and same mineral used in industries for making pig iron. Pig iron means kacha loha. Here is written, mineral and energy resources provide the foundation for economic and industrial development. Very good line. Mineral and energy resources provide foundation for economic and industrial development. This means economic growth of any country as well as process of industrialization, both are depends on presence of minerals. If any country have more minerals and beside also have proper technology for set up their industries, if country arrange either develop machine which are used in industries, then same country take place good position in the world in the case of economic development. कहने का आशय है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास अगर किसी देश को करना है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योगों का विकास करना है, तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स ये दोनों ही जो है फाउंडेशन का काम करता है, एक बेस प्रदान करता है. कंट्री कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लिविंग स्टैंडर्ड्स हर देश का अलग अलग होता है, तो कोई भी देश अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए सोच सकता है विदाउट यूटिलाइजिंग इट्स मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस. तो नो कंट्री कैन थिंक, कोई भी देश सोच ही नहीं सकता कि कैसे हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा लें बिना मिनरल और एनर्जी के यूज़ किए, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टोटली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. वी हैव एविडेंसेस. एविडेंस मीन्स प्रमाण, प्रूफ. तो वी हैव एविडेंस टू प्रूव हाउ द एडवेंट ऑफ डिफरेंट मेटल, एडवेंट मीन्स खोज, हैव हेल्प्ड इन द progress of human civilization during copper age, bronze age and iron age. As you know, history proved that these all minerals cannot use on a single time. When these minerals start to use, it's declare about the particular civilization. Copper age means a particular civilization in which
utilization of copper will start. Similarly, Bronze Age means during the age of bronze metal used by the people. तो ये क्लियर है कि कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन ये तीनों एक युग रहे हैं और इस पर्टिकुलर युग में इन धातुओं का, इन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा. In the previous class you have already read about the layered structure of the earth. Earth have different structure. You well know. I would like to show here. Suppose this one is earth. The outer layer of this earth is known as crust. This outer layer known as crust. Thereafter Sial, thereafter Sima, and last one is नीफे. याद रखना है, ये 7 में था आपके क्लास में. क्रस्ट, सियाल, सीमा, नीफे. सियाल मेड विद द हेल्प ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. रिमेंबर इट. बिलो लेयर ऑफ द क्रस्ट सियाल. सीमा मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. सियाल मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम. है ना. स्पेल पे आप ध्यान देंगे. SI सियाल, SI सिलिका एंड AL एल्युमिनियम. ऐसे ही शीमा में सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा. और नीफे डिनोट्स फॉर निकल. नीफे को निकल कहते हैं. निकल मीन्स होता है लोहा. ठीक है. तो यहाँ पे बताया गया है structure of the earth, the surface crust to inner core. inner core means वही नीफे जो पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है. the earth crust, the outermost solid shell. outermost solid shell means सबसे ऊपर का ठोस हिस्सा जो पृथ्वी का है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं. of our planet, हमारे ग्रह का, because earth is one of the planet also who belong from the solar system, is composed of different kind of rocks. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रॉक्स ने अर्थ क्रस्ट को बनाया है. उसमें अलग अलग रॉक्स के पार्ट्स मिक्स हैं. Now one do you know given here especially about the geologist and geology. I want to add one geographer also. तो जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जियोलॉजिस्ट मीन्स भूगर्भ शास्त्री, जो अर्थ के इनर पार्ट का स्टडी करते हैं. अ जियोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट, यह एक वैज्ञानिक होते हैं, हु स्टडीज़ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट मीन्स पृथ्वी की पपड़ी. तो वो किन चीज़ों से बनी है? कंपोजिशन मीन्स what are the things which are used for making these earth crust. and structure का मतलब है बनावट. it is related to the branch of science. ये जो है विज्ञान की एक शाखा है, उससे जुड़ा हुआ है और जिसके अंतर्गत जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. उस ब्रांच ऑफ साइंस का नेम है जियोलॉजी. तो आप कह सकते हैं जियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच जियोलॉजिस्ट study about the composition and structure of the earth surface. Either we can say earth crust. Geological Survey of India. ध्यान देना है. Geological Survey of India, भारत का यह एक डिपार्टमेंट है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मैपिंग का कार्य करता है. इज़ प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मीन्स भारत सरकार का यह एक रिसर्च विंग है. इट वाज सेटअप इन 1851. 1851 में इसकी स्थापना की गई. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ साइंस टू द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड पब्लिक इन जनरल. इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है. हम आगे अब देखेंगे. ऑल रॉक्स contain crystal of naturally
occurring chemicals called minerals. ये mineral की define हो जाएगी. Define the term mineral. All rocks contain crystal of natural occurring chemicals. Means ऐसे chemical जो natural occur हैं, means प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हैं क्रिस्टल फॉर्म में, दाने के रूप में, उसको हम मिनरल्स कहते हैं. द रॉक्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड और डेफिनिट मिनरल कंपोजिशन. रॉक्स में कोई डेफिनिट मिनरल कंपोजिशन नहीं होता, मीन्स कोई निश्चित खनिज पदार्थ का संगठन नहीं होता है. ईच टाइप ऑफ रॉक इज मेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर मिनरल. कोई भी एक रॉक होगी तो उसमें एक पर्टिकुलर मिनरल पाया जाएगा, ठीक है. और एग्रीगेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल्स, या एक मिनरल से ज़्यादा उसका पार्ट होगा. अ मिनरल मे बी मेड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. मिनरल हो सकता है कि वो एक किसी सिंगल एलिमेंट से बना हो, मतलब कोई एक ही उसमें तत्व हो. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, या एलिमेंट की संख्या बढ़ सकती है. तो व्हेन any mineral made with the help of combination of more than one element known as compound. साइंस में भी आपको मिला होगा व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है. कंपाउंड मीन्स यौगिक होता है, जैसा जानते हैं योग मीन्स जोड़ना, तो कंपाउंड मीन्स यौगिक जिसमें दो चीज़ें जुड़ी हों. ईच मिनरल हैज इट्स ओन स्पेशल शेप ऑफ क्रिस्टल. मिनरल के क्रिस्टल का अलग अलग शेप होता है. दीज मिनरल क्रिस्टल्स गिव द रॉक its structure of hardness, luster and colors. इसका मतलब है the colors of mineral, the luster of mineral, luster means चमक है ना, जो जिससे कोई भी धातु चमकता है, and hardness, कठोरता उसकी जो है, ये मिनरल के क्रिस्टल पे डिपेंड करते हैं. therefore rocks may be hard or soft on the basis of these character of the minerals and in varied colors. varied मतलब different, विभिन्न उसका रंग भी हो सकता है. sandstone, limestone, basalt and granite are some examples of rocks. ये सभी rocks के प्रकार हैं, लेकिन difference है इसमें. जैसे due to volcano eruption बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर फॉर्म. ज्वालामुखी अगर फटता है तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं. ग्रेनाइट डेवलप इनसाइड द वोल्केनो एंड बेसाल्ट डेवलप आउटसाइड द वोल्केनो, ठीक है. तो इसको आप कह सकते हैं ग्रेनाइट इज़ इंट्रूसिव रॉक्स एंड बेसाल्ट इज़ एक्सट्रूसिव रॉक्स. लाइमस्टोन सॉफ्ट है, इट कैन बी ईजली डिजॉल्व विद इन द वाटर. तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं. यहाँ पे कुछ नेम बताए गए हैं और उसकी क्रिस्टल का शेप बताए गए हैं और उसका एक रियल एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा आप मेमोराइज कर सकते हैं. जैसे क्यूबिक शेप में होगा द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल. अब जैसे हैलाइट, ये इसका एक एग्जांपल है. फिर है मोनोक्लिनिक, द मोस्ट कॉमनली फाउंड क्रिस्टल, ज़्यादातर ये पाया जाता है मोनोक्लिनिक. इसका एग्जांपल जिप्सम है. और टेट्रागोनल शेप में अगर मिलता है तो द एलोंगेटेड क्रिस्टल, एक दूसरे से इसमें जुड़ाव होगा क्रिस्टल्स में, इसका एग्जांपल है जिरकॉन, ठीक है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज. A rock having a large concentration of a particular metal mineral is called its ore. ore का मतलब होता है अयस्क, हिंदी होती है इसकी. A rock having a large concentration of a particular metal means एक रॉक्स में किसी निश्चित मेटल का कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा जमाव होता है. जब एक ही मेटल मिनरल जो है ज़्यादा मात्रा में किसी रॉक्स में होगा तो उसको हम ओर कहेंगे, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन ओर मीन्स लव अयस्क. अब यहाँ ध्यान देना है, आयरन एंड आयरन ओर बोथ आर डिफरेंट.
वी ऑब्टेन आयरन फ्रॉम आयरन ओर, हम लोहा लौह अयस्क से प्राप्त करते हैं। आफ्टर फॉलोइंग डिफरेंट प्रोसेस इन ब्लास्ट फर्नेस, है ना, स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस होता है, वहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ऐसे ही कॉपर ओर है, इससे कॉपर निकालते हैं। सिमिलर केस अबाउट द एल्युमिनियम, वी ऑब्टेन एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर, याद रखना है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मिनरल्स, अब है कि जो यूजफुल मिनरल हैं, उपयोगी जो खनिज पदार्थ है, उसका जब एक्सट्रैक्शन करेंगे, जब उसको हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना, फ्रॉम रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के अंदर से अगर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइनिंग। द माइनिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स विच डीप ब्यूरेड अंडर द अर्थ सरफेस। अब मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस, माइन से मिनरल को तभी निकाल सकते हैं ओनली इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल इज़ हाई, अगर उसका कंसंट्रेशन, उसका जमाव बहुत ज़्यादा है, कॉमर्शियली विएबल एंड यूजफुल, मीन्स उसको हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें, व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो वो उचित होगा और उपयोगी होगा। अब थोड़ा सा कोयला है, हम सारा प्लांट वहाँ लगा देंगे निकालने के लिए, तो खर्च उसमें ज़्यादा होगा। अब इस पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है, एंड एंथ्रासाइट कोल इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, बट द अमाउंट ऑफ एंथ्रासाइट कोल इज़ वेरी लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, so that is why we cannot extract anthracite coal from the Jammu and Kashmir because it's having adversely effect on the beauty of Jammu and Kashmir, वहाँ की सुंदरता को प्रभावित कर देगा। तो minerals are extracted by the process of mining, drilling and quarrying। अब ये तीन तरीके हैं जिससे मिनरल निकाले जाते हैं। जैसे माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग होगा, ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है कि पृथ्वी की सतह को जैसे ही थोड़ा सा खुदाई करेंगे तो वो मिनरल हमको मिलने लगेगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस है सॉफ्ट माइनिंग का, ड्रिलिंग में होल किया जाता है, ठीक है, क्वेरिंग में भी खुदाई होती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं। सॉफ्ट माइनिंग में मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करके खुदाई करके ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब हम रिमेनिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।